A very hearty good morning, everyone. I, Sejal Pawar, Assistant Professor, IIMT College of Science and Technology, present a pleasant greeting to the respected people of recognition from IIMT College of Science and Technology, Greater Noida. Director Dr. Poonam Pandey, Dean Dr. C.S. Yadav, IIC President and HOD BSc CS Dr. Vishali, and IIC Convener Dr. Disha Vidyarthi. I also welcome all the other dignitaries, IIC coordinators, and our inquisitive students to this live film screening session. It is my pleasure to welcome to you to this special occasion where we celebrate National Startup Day. This day honors the spirit of entrepreneurship and innovation, the backbone of a thriving economy. It is a tribute to the visionaries and risk takers who shape the future through their creativity, resilience, and determination. Today, as we celebrate this occasion, I am excited to share with you an inspiring story through the screening of the film Prahlad. This film takes us through the journey of Finolex founder Sri Prahlad P. Chhabaria, who established the Finolex group of companies in 1958 and over the years built it into a well known conglomerate. Prahlad is more than just a story about founding a company. It's about the mindset that drives startups, seeing possibilities where others see obstacles. As students, many of you are future entrepreneurs in the making. Whether you aim to build your own startup or contribute to the growth of others, I encourage you to observe the lessons embedded in this story about leadership, adaptability, and the power of a big idea. Before we begin the screening, let me leave you with a thought. Startups are not just businesses, they are dreams with deadlines. Each of you here has the potential to bring about change, to solve problems, and to create something impactful. With that, I invite you to sit back and immerse yourself in Prahlad. Let it spark your imagination and inspire you to your entrepreneurial journey. जी भी आए गाड़ी हलन में भले चोरी मंच मुझे पेमेंट आहे ना चिंता ना करियो मां पहुंची करे खत मोकिलींदुसि तव्हां ठीक रहंदव ना कि ॿ साल कीअं गुज़री विया ख़बर ई कान पई मुंहिंजे ॾिसंदे ॾिसंदे तुंहिंजी मुछियूं बि अची वियूं सीता जी तव्हांजो आशीर्वाद ई घणो आहे अरे हूअ त आहे ई इहा तुंहिंजे लाइ अथे रखी वठ हर महीने मां तुंहिंजी पगार मां बचाए रखंदो हुयसि रखी वठ चङो हालात हो ठीकु आहे पोइ सलाह दो पंहिंजो ध्यानु रखजांइ
पाणी नाहीये. सुद्धा इतका घाण वास येतोय, असं वाटतं नाकात लगेच जडून खाक होती. रास्ता दोगे भाई? मैं खिड़की पर बैठ जाऊं? उठा दो. तिथंच ठेवला, कुठे दिला? काय अहो, चिऱ्याचा डब्बा खान भाई को देना था. हमको बिल्कुल भूख नहीं है. खुद कसम. खान भाई, भूख तो सबको लगता है. सुबह से देख रहा हूँ आपने कुछ नहीं खाया है. सब अपनी बेटी को खिला रहे हैं आप. ताकत की जरूरत इसको है. हम 2 दिन खाना नहीं खाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा. खुदा कसम. अहो, चोरीला गेला हो आपला डब्बा. हो, असं कसं कोणी चोरी करेल? नीट बघा, आतमध्ये असणार. मी बघितलंय, तुम्हीच बघा आता. हो, एक काम करा, आधी ती चेन खेचा. उठा, चला चला. शिऱ्याच्या डब्यासाठी चेन खेचू. अहो, आपला डबा हरवला, उठा ना. मी बघतो. ओ भाई, ये हमारा इसका शिरा का डब्बा देखा क्या? अहो, आधी याच्यात बघा ना तुम्ही. हाँ, मैं बघतो. ये भाई साहब, शिरा का डब्बा देखो, उधर गया हुआ नीचे. हाँ, शाबाश शाबाश. ओए, तुमको कैसे पता ये डब्बा इधर है? वो चीटियों की गाड़ी, तो तुक्का लगाया, लग गया. माशाअल्लाह, बहुत अक्लमंद है. ले लो काय. ये शीरा बहुत अच्छा बनाती है. हाँ, वर्तमान पत्र देगी. या. डबा ठेवून देते नीट. परत हरवायचं. डब्याला कुलूप लावलात ना? असंच बोलतोय. मराठी समझती है? अभी तक नहीं, लेकिन मुंबई पहुंचने तक आ जाएगी. मुंबई? हम भी मुंबई जा रहे हैं. इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? आम्ही सुद्धा मुंबईला जातो. आम्ही सुद्धा मुंबईला जात आहोत. आम्ही सुद्धा मुंबईला जात आहोत. जात आहो. जात आहोत. मुंबई में कौन है? काम. नहीं, मतलब चाचा मामा. मतलब क्या करना है, कहाँ जाना है? अकेले इतने दूर. इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? अगर कोई दिक्कत हो तो ये भी मुंबई जा रहे हैं, इनसे पूछ लो. बेइंतियां जगह पड़ी है वहां पर, लेकिन अपने ही सामान पे कुंडली मार के बैठना क्या जरूरी है? हटाइए. आओ हटाइए. आओ. एक थांबा. आना, चोर, डाकू, जेब कतरे सब होते हैं ट्रेन में, लेकिन आराम भी तो कोई चीज है. भाईजान, उठ जाएगा. क्या? नोट उठ जाएगा. वो कैसे मालूम? सबको मालूम है. बार बार जेब में हाथ डाल के देखता है आप. तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर अंकल के पास. मुंबई में रहते हैं. कहते हैं मुझे ठीक कर देंगे. क्या हुआ है? बच्ची को पेट का बीमारी, डॉक्टर को दिखाने के लिए मुंबई जा रहा है. मुंबई हमारा घर नहीं है. हम घर से दूर जाते हैं. मैं भी. वो मटका लेना है ना. कितना भाई साहब ने घर पंडित जी की साड़ी के. हाँ जी, वो वाले. हाँ, वहाँ पे.
नमस्ते जी। प्रहलाद बाबा। अरे सोमन चाचा। आप यहाँ कैसे? बस बाबा। बाबा आप कराची से अमृतसर कब आए? कितने सालों बाद देख रहा हूँ बाबा। कितने बड़े हो गए हैं बाबा आप भी तो कितने बूढ़े हो गए चाचा। प्रहलाद बाबा आप यहाँ काम करते आपने हमें बताया क्यों नहीं? बाबा आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलेंगे? कहाँ? आइए ना। जीजा जी। हाँ, सिंगड़ जी मिठाई आपने बनाई? अपने हाथों से बनाया बाबा, आपके लिए। वही स्वाद है ना बचपन वाला? बाबा अपने हाथों से बना के बहुत खिलाया मैंने आपको। ये सब आपका ही है बाबा। वहाँ बैठिए ना आप गद्दी पे। तो चाचा ये सब सेठ जी के कारण हो पाया है। मैं तो आपके घर में बाबा बस एक मामूली नौकर था। नहीं चाचा, ये सब आपकी मेहनत से हुआ है। मुझे भी मेहनत करने दीजिए। होनहार बीरबान के पुत्र, सुना था, खास देख ली। आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। चलता हूँ। ठीक है। डर नहीं लग? ये पिक्चर चल रही है कोई? हाँ। तो यार हॉलो यार सिनेमा चलाओ यार, कब कहूँगा? अरे बंद कर माइक। अरे यार माइक बंद मत कर। चल अंदर। क्या रहे हो अच्छा या? चले कर अंदर। मैं बम्बई अपना घर बनाने जा रहा हूँ। और ये अपना काम करूंगा। आप देखो अच्छा है लेकिन आंखें खोल के मत देखो। आंखें खोल के सपने देखूंगा तभी तो उन्हें पूरा कर पाऊंगा। आंखें खोल के सपने। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो। अच्छे ही हो।
काम की तलाश में बम्बई जा रहा हूँ। अब्बू को अंग्रेजों ने मार दिया था और अम्मी को भी मारी। अम्मी को दफना के आ रहा हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। अफसोस नहीं चाहिए। तुम बताओ, अबू कहाँ है? अम्मा कराची में, अबू अब नहीं रहे। अफसोस हुआ। अम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? वापस चले जाओ। बम्बई उनका सहारा बनने तो जा रहा हूँ। फिर मत जाना। सो जाओ। कितनी बार देखोगे? कल सुबह उठ के फिर से देख लेना। कौन सा स्टेशन है? कौन सा स्टेशन आहे? तुम मराठी सीख गए? भूल गई। कल आपने ही तो सिखाई थी। अब मुझे उल्लू मत बनाओ। ए, हमारी बीवी को उल्लू नहीं बोलने का। काय आवाज अंदर सांगा नाही नको. खाऊन बघ पोट्याचे समोसा लय तिखट हा. और ये समोसा तुम्हारे और सबा के लिए। अरे वाह, कितने पैसे हुए? चलो जल्दी ट्रेन निकल जाएगा। अभी ये समोसा खाएगा बहुत अच्छे। तेरे पैसे? तो लाके दिया 3 समोसा खाके ही नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? हाँ? क्या क्या हुआ? ढूंढ रहा है? अरे हुआ क्या? हाँ, अरे क्या ढूंढ रहा है? क्या हुआ? अरे अरे हाँ, मेरे 10 रुपए। कहाँ पे रखे थे? अरे शीरे के डब्बे के जैसा इधर किधर होगा, मिल जाएगा। ओए तुम्हारे बैग में ढूंढो उधर ही होएगा। नहीं, जेब में था। तुमने देखा था ना? हाँ। अब घर कैसे खरीदोगे? म्हणजे छा कंदे हे तर नंदो बारा ज्याच्या बंदो तमा खूह मटर पड़िया तो रोकिन दोस ना छा तव्हांजो भाव हुजे हा त हुन खे अकेलो वंजण ॾियो हा। दीदी, तू माठ कर। मां उते पहुची दुकान खोलींदुसि। ॾिस जो, पोइ सभिनी खे उते घुराईंदुसि। अमां बि उते अची वेंदी। जॾहिं ही बाबा हुआ त असीं सभई गॾु रहंदा हुआसीं, हिकिड़े ई घर मां। अहिड़ीअ तरह ई रहंदासीं। अॻियो वक़्तु ॿियो हो, हाणे ॿियो आहे। तू समझे छो नथो? पाणी खा।
हाँ हाँ। पढ़ो मिल जाएगा। कोई मर जाता है तो पढ़ते हैं। मेरा वैसा मरा नहीं है। कोई गुम हो जाता है तो भी पढ़ते हैं। छोटे बच्चे सदा तो वो तो इधर नहीं बैठो। चीटी आए बुला रहे। तो न दुख नहीं करना। अल्लाह तुमको और देगा। खुदा कसम तुम्हारा पूरा जिंदगी पड़े। सर मैडम, तो तुम अमृतसर से बम्बई अकेले जा रहे हो, वो भी 10 रुपए के साथ? वैसे भागे तुम, पैसे किसने दिए? यही मेहनत के हैं। ये कपड़ों की दुकान में काम करता था, बम्बई काम ढूंढने जा रहा हूँ। तो उन पैसों से बम्बई में घर खरीदने जा रहे हो। पैसे घूम गया तो क्या कर सकते? हाँ, पैसे से ढूंढा। गुम नहीं हुआ है, चोरी हुआ है। मुझे रपट लिखानी है। क्या? मेरे पैसे चोरी हुए हैं, उसकी रपट। तो और देख लो, पैसे कहाँ रखा है? गेम में कहीं हवा से उड़ तो नहीं गया? वो खिड़की रात भर बंद थी। अगर मेरा नोट हवा से उड़ा होता तो उसके साथ साथ ही अखबार भी उड़ जाता। और ये तो वही है, तो फिर नोट कैसे उड़ जाएगा? ये देगा। सब इसको पूछो, ये रात भर जाग रहा था। क्या मतलब? मतलब तुम रात को जाग रहे थे तो तुमने चोर को देखा होगा ना? हाँ देखा है। तो बोलो ना। ये चोर है। ये क्या? काय बोलतोय मैं हा? कैसे चोर हुआ? तुम रात भर जाग रहे थे तो भूल गए हो क्या? हाँ। काम का बदनाम क्यों करते हैं? हाँ। ये अच्छा आदमी है। हाँ। अरे मैं खराब आदमी हूँ क्या? मैंने कहा ना। मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? सर, आप रपट लिख दीजिए। अगले स्टेशन पे उतर के लिखाना होगा। जिसने इसके पैसे लिए है ना, अगले स्टेशन आने तक दे दे वो पैसे। तो सबको जेल की हवा खानी होगी, मैं बता रहा हूँ। हमारे साथ रिपोर्ट लिखाने कौन जाएगा? हाँ चाचा, आप चलेंगे मेरे साथ? सब बीमार है, इसके पास कोई नहीं। कोई होता तो जरूर रहता। ये जयदेव भाई आ सकते हैं। मैं कैसे खान भाई, उधर पुलिस पूछताछ करेगी तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, ऐसी जानकारी के लिए नाम बताइए। जयदेव गौड़ बोले। जयदेव गोड़ बोले, मराठी है? हाँ, पुणे का हूँ। आप भी मराठी है? नहीं, मैं कोटा से। आप जेब खान? जेब खान। तुम्हारा नाम क्या? फैसल। पूरा नाम? फैसल अली। फैसल अली। पता? पता होता तो बम्बई जाता क्या? टिकट दिखाओ। अगले स्टेशन पे ले लेना। मैं तो आपको दिखाने के लिए लिया था, रख लीजिए आप।
आप दोनों को अगले स्टेशन पे इस बच्चे के साथ स्टेशन मास्टर के ऑफिस में आना पड़ेगा। लेकिन और आप दोनों नहीं आएंगे तो मुझे आप दोनों को लेने के लिए यहाँ आना होगा, समझे? ठीक। अब मेरे से आप बुलाइए। चलो जी, चलो। आओ सर, बैठो। ऐसे गायब हुए तुम्हारे पैसे? चोरी हुए? बताया टीटी साहब ने कि आप रपट लिखवाना चाहते हो? अरे तुम तो बहुत छोटे हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाओ? क्यों नहीं? ठीक है, तो लिख लेते हैं फिर तुम्हारी रपट। अगर तुम्हें अभी भी किसी पे शक है तो हमें बता सकते हो, हम उसकी तलाशी लेंगे। हो सकता है बिना रपट के ही तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाए। साहब आप बरोबर बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी इसको इतना समझा है, लेकिन ये बार बार रपट रपट ही बोल रहा है। तो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। साहब साहब उधर बोगी में ना एक लड़का है, वो शक्ल से ही मवाली लगता है। इसका पैसा ना उसने ही लिया होगा। आप जल्दी से उसका तलाशी ले लो, वो कहीं भाग ना जाए। और आप खान साहब, आपको क्या लगता है? हमको कैसे मालूम? हम देखा नहीं, कैसे बता सकता है? कैसे मालूम? ठीक है, आप तलाशी ले लीजिए। हाँ जल्दी लो, तो भाग जाएगा। उसकी नहीं, इनकी। मेरी मेरी की नहीं, इनकी। पागल हो गया क्या साहब? इसका दिमाग सटक गया है। खान भाई ने तुम्हें समोसा खिलाया और तुम उनके बारे में ऐसा बोलता है? हाँ? वही तो। क्या भाई तो? कल उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए कि सबा खा सके। और आज मेरे लिए भी समोसा खरीदा। आज क्या बदल गया पठान चाचा? वो तुमको हमारा बेटा समझ के खरीदा समोसा? ये कैसी बात करता है ये? एक मिनट, शांत हो जाइए। तुमने कहा कि इन्होंने तुम्हारे पैसे से समोसे खरीदे, तो इसका मतलब तो तुम्हारे पैसे समोसे वाले के पास चले गए। इनके पास ही है। हाँ? समोसे वाले के पास 10 रुपए का छुट्टा कहाँ से आएगा? आप या तो रपट लिखिए या तलाशी ले लीजिए। तेरी हमारी तलाशी ले लिए, हमको दिखाता है क्या? नहीं नहीं, हमको दिखाता है। ये लो, ये लो, ये 10 रुपया, ये 10 रुपया, ये तीन तीन 10 रुपया। इसमें से कौन सा 10 रुपया तुम्हारा है बोलो? और ये ले, ये पैसा है, बोलो, बताओ मुझे, बताओ। इसमें से कौन से तुम्हारे 10 रुपये का नोट है? बताओ मुझे, बताओ। 13800415 इस अंक का नोट है मेरा। हाँ नहीं, गरीबी का कसूर है पठान चाचा। बड़ गलती हो या मुझसे माफ करो। वापस चलते हैं, सब इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें रबड़ नहीं दिखानी है? शैजल भाई का टिकट। हाँ, शुक्रिया।
सब अकेले आप अंदर चलिए। आपका गिरोह आगे आगे और पीछे पीछे पूरे गांव के गधे ढेचू ढेचू करते हो। गधे अपनी पूरी जिंदगी में उतना तेज नहीं दौड़े थे जितना उस दिन दौड़े। फिर क्या, वो दिन था और आज का दिन। उस गांव में कभी कोई चोर डाकू नहीं आया। आगे आगे खेल खत्म। ऐसा आजा। आदि रबड़ कौन आ रहा है मियाँ हमें घड़ी लगाने? आपका टिकट टीटी साहब ने दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? रबड़ लिखा थी, पैसे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, तू आराम कर। मैंने थोड़ा शीरा बाकी है। बहिनी अहो, तो डब्यावर बसलात का? परत डबा इथे ठेवला होता मी. अहो, बाकी भाई देखो डब्बा है, खाली गेला का? अहो, डब्बा है क्या? देखो उधर टैक्सी खोल सा डब्बा था। खाली गेला का? अहो, डब्बा है क्या? देखो उधर सड़क की यादों की ऐनक है, मोहल्ला खुदा को भनक है। मेरी है सनक औरों से अलग, कल का मैं चला आज की चमक। मैं तो बेबाक चला, मैं तो बेबाक चला, बर्क तो की छाओ चला ठाट चला। मैं तो बेबाक चला, मैं तो बेबाक चला, पिछड़ी को चाट चला ठाट चला। मैं तो बेबाक चला। ला ला ला, ओ ला, Thank you, everyone. Throughout the screening, you paid pure attention to the film. The film offered an incredible look into the life of an entrepreneur who transformed challenges into opportunities and built something extremely extraordinary from the scratch. He came to the city with rupees only 10, and then he made a company from that 10 rupee only. So now I would like to open the discussion on the film. Anyone who wants to share their views or tell me something that they liked or disliked about the film, I'm open to hear it. I would request all the students to come forward and share their views. Yes, Sejal ma'am, that was a very good documentary, and it really was helpful in creating that kind of mindset for the student, that how if even they are not having a single penny, but if they are having that will, confidence and that kind of conviction, definitely they can create something big for them. And not only entrepreneurship is kind of career choice that it does not only give you the career path or the source of income. You can also generate jobs in the market for the
young people out there. So it's not that you will be only the earner, you will be the giver also. So yes, definitely in this changing scenario, this movie had a very good message, and I hope that all the students in this Institute of Science and Technology through this session under the ISC, it will be helpful for them to understand that only go and grab the jobs in the market is not the only thing. They can be the future builders, they can be the pillars of the society, they can be contributors in the economy as well. So yes, that was a very good I'll say that step that we all are collectively taking, and thank you so much for organizing this thing. So I'll give it to you, over to you again, and if all the young minds can take the part in this discussion, and other the eminent personality on the dais through this online platform, they're most welcome, because only we as the guide can be helpful for the students, so that they can create a path for themselves. And in today's time, entrepreneurship, innovation, startup, skill India, this is the thing which is on boom, and this is the kind of identity as Indians we are making on the global platform. So definitely I'm very glad that you made a choice to show this kind of inspirational documentary to the young minds. So over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now I would like to open the platform to all the students to share their views on the same. I can see a few students on the panel. Good morning, ma'am. First of all, thank you for showing us such an amazing film. And secondly, it was really inspiring for us. And it shows us what the importance of determination and hard work for us. Like, his compassion for his compassion for his his compassion for earning the money made him to the Bombay, and how he turned his rupees 10 to the was really inspiring for us. The film was really amazing, and thank you so much for organizing such and showing us such films. Thank you, ma'am. Thank you, Manish, for your views and insights on the movie. Anyone else who would like to speak on the same? Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I would like to put my views on the documentary. That firstly, this was a very powerful inspiration for all the entrepreneurs and individuals facing adversity. And secondly, the success is not solely depend upon the external factors, but rather on our inner strength, resilience, and determination. And no doubt, this demonstrates the importance of staying true towards one's principles and their harmonies. Thank you. Thank you, Yashika. And now with this, I would like to close the session. Thank you everyone for joining. And before that, I would like to point to something about the movie, that entrepreneurship and startup skills is not just about the brain, but also about the heart, which we learned from this movie. So thank you everyone for joining. And I hope you take away a lot of insightful information and the zeal to start something new from the movie and from this screening session. Thank you everyone for joining.